السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہم پڑھ رہے ہیں دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ یعنی عربی بول چال کورس۔ اس کورس کے ہم 12 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 13 ہے۔ اس سبق میں ہم ہذا اور ہذہ اور من اور ما کے ذریعے مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کی روشنی میں جملے بنانے کی مشق کریں گے، اور چونکہ ہم اس سبق میں مؤنث کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے اس لیے آپ مؤنث کے کچھ قاعدے جان لیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مؤنث الفاظ کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں حافلہ، حافلتن، تو اس کے آخر میں دیکھیں آپ گول تا لگی ہوئی ہے جس کے معنی ہے بس۔ ایسے ہی ہم کہیں دراجتن، تو اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے جس کے معنی ہے سائیکل۔ تو یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ خواتین کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کے آخر میں چاہے گول تا لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، ان کو ہم مؤنث ہی کہیں گے، ان کو ہم مؤنث ہی کہیں گے۔ جیسے فاطمۃ، تو اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، یہ مؤنث لفظ ہے۔ ایسے ہی زینب، تو اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اس لیے اس کو مؤنث ہی کہیں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے آخر میں نہ گول تا لگی ہوئی ہوتی ہے اور نہ وہ کسی خاتون کا نام ہوتے ہیں۔ جیسے اذن جس کے معنی کان، عین جس کے معنی آنکھ، یہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں چونکہ عرب لوگ ان کو مؤنث ہی استعمال کرتے۔ اب آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر۔ ھذا کا مطلب ہم سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنے سے قریب مذکر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا مانے یہ، ابن مانے لڑکا، حامد کسی شخص کا نام۔ ھذا ابن حامد کا مطلب ہے یہ حامد کا لڑکا ہے، یہ حامد کا لڑکا ہے۔ وھذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ھذہ کا استعمال اپنے سے قریب مؤنث چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ھذہ یہ بنتو مانے بنتن لڑکی کو کہتے ہیں، بنتو مانے لڑکی، اور یہ یاسر کی لڑکی ہے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں ابن یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ نہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہے اور نہ اس کے آخر حرف یعنی نون کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور حامد یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ اس کے آخر حرف یعنی دال کے نیچے زیر کی تنوین آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے بنتو یاسر، یہ بنتو یاسر میں دیکھیں آپ بنتو یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام لگا ہے نہ اس کے آخر حرف کے اوپر تنوین ہے، اور یاسر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ اس کے آخر حرف یعنی را کے نیچے زیر کی تنوین لگی ہوئی ہے۔ ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر، یہ حامد کا لڑکا ہے اور یہ یاسر کی لڑکی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ۔ ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ، حامد کا لڑکا بیٹھا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ابن یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام لگا ہے اور نہ اس کے آخر حرف یعنی نون کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حامد اس کے نیچے زیر کی تنوین آ رہی ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، اور بنت یاسر اس میں بنت یہ مضاف بن رہا ہے اور یاسر یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر آگے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا من ھذہ، من ھذہ یہ کون ہے؟ من مانے کون، من یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی انسانوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ ھذہ مانے یہ، من ھذہ یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ھذہ اخت المہندس، ھذہ اخت المہندس یہ انجینئر کی بہن ہے۔ ھذہ مانے یہ، اخت مانے بہن، المہندس مانے انجینئر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اخت یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام لگا ہے نہ اس کے آخر حرف پر تنوین آ رہی ہے۔ المہندس یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ اس کے آخر حرف یعنی سین کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ پھر آگے سوال کیا گیا اہیا ایضا مہندسۃ، اہیا ایضا مہندسۃ کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ آ مانے کیا، ہیا مانے وہ۔ ہیا یہ ضمیر مؤنث ہے اور ضمائر کے بارے میں ہم قواعد کے بیان میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ ہیا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آہیا کیا وہ، ایضاً مانے بھی، کیا وہ بھی، مہندسۃ انجینئر ہے، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ تو جواب دیا گیا لا ہیا طبیبۃ، ہیا طبیبۃ نہیں وہ ڈاکٹر ہے، یعنی وہ انجینئر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر ہے۔ پھر آگے سوال کیا گیا سیارۃ من ھذہ،
सय्यारतुम मन हादिही, यह कार किसकी है। सय्यारा माने कार, मन माने कौन, लेकिन यहाँ पे तर्जमा करेंगे किसका। हादिही माने यह कार किसकी है। तो यहाँ पर आप देखें सय्यारतुन या मुन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर हादिही का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जवाब दिया गया हादिही सय्यारतुल मुदीर, हादिही सय्यारतुल मुदीर, यह मुदीर की कार है, यह प्रिंसिपल की कार है। तो यहाँ पर आप देखें सय्यारतुल मुदीर, यह मुजाफ और मुजाफ इलैह बन रहे हैं। फिर आगे सवाल किया गया मा हादिही, यह क्या है। मा, इसका इस्तेमाल गैर ज़वील उक़ूल चीज़ों के लिए होता है, चाहे वो बेजान चीज़ें हों या जानदार जानवर, उनके लिए इस्तेमाल होता है। मा हादिही, यह क्या है। तो इसका जवाब लिखा हुआ है हादिही मिकवातुन, हादिही मिकवातुन, यह प्रेस है। हादिही मिकवातुन, यह प्रेस है, यानी इस्त्री जो करते हैं कपड़ों के ऊपर। फिर आगे सवाल किया गया लिमन हादिही, यह किसका है, यानी ये प्रेस किसका है। तो यहाँ पर आप देखें मन से पहले जो लाम लगा हुआ है ये हुरूफ जारा में से है, इसका तर्जुमा होता है के लिए। इसको जब हमने मन के साथ लगा दिया तो हो गया लिमन, तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा यह किसके लिए है, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा करेंगे यह किसका है। तो इसका जवाब लिखा गया है हादिही लि खालिद, यह खालिद का है, यानी ये प्रेस जो है यह खालिद का है। फिर आगे सवाल किया गया अदर्राजतु अनसिन हादिही, क्या यह अनस की साइकिल है। आ माने क्या, दर्राजतुन माने साइकिल, अनस किसी शख्स का नाम, हादिही माने ये, क्या यह अनस की साइकिल है। दर्राजतु अनसिन, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह बन रहे हैं। तो आगे जवाब दिया गया ला हादिही दर्राजतु अम्मारिन, नहीं यह अम्मार की साइकिल है। तो यहाँ पर आप देखें दर्राजतु अम्मारिन, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह बन रहे हैं। हादिही जदीदतुन व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, यह नई है और अनस की साइकिल पुरानी है। कदीमतुन माने पुरानी और अनस की साइकिल पुरानी है। तो यहाँ पर आप देखें दर्राजतु अनसिन, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह बन रहे हैं। फिर आगे जुमला है हादिही साअतु अलीयिन हिया जमीलतुन जिद्दन, ये अली की घड़ी है और ये बहुत ही प्यारी है या बहुत ही खूबसूरत है। हादिही माने ये, साअतुन माने घड़ी, अली किसी शख्स का नाम, हिया माने ये और ये ज़मीर है जैसा कि पीछे बताया जा चुका। जमीलतुन माने खूबसूरत, जिद्दन माने बहुत, हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर आगे जुमला लिखा हुआ है हादिही मिलआक़तुन व हादिही क़िदरुन, अल मिलआक़तु फिल क़िदर, यह चम्मच है और ये हांडी है, चम्मच हांडी में है। हादिही के माने ये, मिलआक़ा, मिलआक़ा कहते हैं चम्मच को जिससे सालन वगैरह निकालते हैं, और क़िदरुन कहते हैं हांडी को, और क़िदरुन कहते हैं हांडी को। हादिही मिलआक़तुन व हादिही क़िदरुन, ये चम्मच है और ये हांडी है। अल मिलआक़तु फिल क़िदर, और चम्मच हांडी में। तो यहाँ पर आप देखें अल क़िदर से पहले फी हर्फ जारा का इस्तेमाल हुआ है, फी के माने होता है में, मतलब है चम्मच हांडी में। फिर आगे जुमला है हादिही बक़रतुल फ़ल्लाही, हादिही बक़रतुल फ़ल्लाही, ये किसान की गाय है। तो यहाँ पर आप देखें हादिही माने ये, बकरा माने गाय, गाय को बकरा कहते हैं, अल फ़ल्लाह माने किसान, फार्मर को अरबी में अल फ़ल्लाह कहते हैं। हादिही बक़रतुल फ़ल्लाह, ये किसान की गाय है। ये बक़रतुल फ़ल्लाही, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह बन रहे हैं। बक़रा तो मुज़ाफ़ इसलिए है क्योंकि इसके शुरू में ना अलिफ लाम लगा हुआ है और ना इसके आखिर हर्फ यानी गोलता के ऊपर तनवीन आ रही है। अल फ़ल्लाही, ये मुज़ाफ़ इलैह है। फिर आगे लिखा हुआ है हादा अनफुन व हादा फमुन, ये नाक है और ये मुंह है। तो यहाँ पर आप देखें हादा माने ये, अनफुन माने नाक। अनफुन चूंकि मुज़क्कर अल्फाज में से है इसलिए यहाँ पर हादा का इस्तेमाल किया है, हादिही का इस्तेमाल नहीं किया है। और फिर आगे हादा फमुन, हादा माने ये, फम माने मुंह, फम अरबी में मुंह को कहते हैं। तो यहाँ पर फमुन भी मुज़क्कर अल्फाज में से है इसलिए हादा का इस्तेमाल किया है। यह नाक है और यह मुंह है। फिर आगे जुमला दिया गया है हादिही उदुनुन व हादिही आइनुन, हादिही उदुनुन व हादिही आइनुन, यह कान है और यह आंख है। तो यहाँ पर आप देखें उदुन ये मुअन्नस अल्फाज में से है इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आइनुन जिसके माने आंख के आते हैं यह भी मुअन्नस अल्फाज में से है इसलिए यहाँ पर इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया है। हादिही उदुन, उदुन माने कान, यह कान है, व हादिही आइन और यह आंख है। फिर आगे लिखा हुआ है वहादिही यदुन व हादिही रिजुल, यह हाथ है और यह पैर है। यदुन के माने हाथ और रिजुलन माने पैर।
यदुन ये मुन्नस अल्फाज में से है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादही का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और रिजुलन भी मुन्नस अल्फाज में से है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादही का इस्तेमाल किया है। मुअन्नस के कवायद की तफसील इंशाअल्लाह ताला जब कवायद का कोर्स शुरू होगा तो उसमें बताई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जितने आपको मुअन्नस के कवायद बताए गए हैं आप उनके मुताबिक मश्क करें। अब आगे आपको कुछ तमारीन दी जा रही हैं, आप उनको पढ़ें और कॉपी पर लिखें। और इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर भेज सकते हैं। सबसे पहला जुमला है हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन, यह मस्जिद है और यह मदरसा है। तो यहाँ पर आप देखें मस्जिद ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादा का इस्तेमाल किया है। और मदरसतुन यह चूँकि मुन्नस लफ्ज़ है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया है। दूसरा जुमला है मन हादिही, यह कौन है। हादिही उख्तु अब्बास, ये अब्बास की बहन है। तो यहाँ पर आप देखें मुन्नस की तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया है और साथ में मन का इस्तेमाल किया है क्योंकि एक मुन्नस इंसान के बारे में सवाल किया गया। तीसरा जुमला है हादा दीकुन व हादिही दजाजतुन, यह मुर्गा है और यह मुर्गी है। तो यहाँ पर आप देखें दीकुन यह मुज़क्कर अल्फाज में से है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादा का इस्तेमाल किया गया। और दजाजतुन यह मुन्नस अल्फाज में से है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया गया। चौथा जुमला है हादा इब्नुल मुदीरी व हादिही बिन्तुल मुदर्रिस, हादा इब्नुल मुदीरी व हादिही बिन्तुल मुदर्रिस, यह प्रिंसिपल का लड़का है और यह टीचर की लड़की। तो यहाँ पर आप देखें इब्नुल मुदीर यह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनने हैं और इब्न चूंकि मुज़क्कर है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादा का इस्तेमाल किया गया है। और बिन्तुल मुदर्रिस ये भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन रहे हैं और बिन्त चूंकि मुन्नस है, इसलिए इसकी तरफ इशारा करने के लिए हादिही का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा जुमला है हादिही उम्मु यासिर, यह यासिर की माँ है। छठा जुमला है ऐना क़िदरुल लहम, गोश्त की हांडी कहाँ है। हिया फिस सल्लाजा, वह फ्रिज में। तो यहाँ पर आप देखें क़िदरुल लहम यह मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बनने हैं। सातवां जुमला है हादा बाबुन व हादिही नाफिज़ा, यह दरवाज़ा है और यह खिड़की है। अब आपको कुछ मुज़क्कर जुमले दिए जा रहे हैं, आप उनको पढ़ें और उन्हीं के मुताबिक मुअन्नस जुमले बनाएं। जैसे सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है मुहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद तालिब इल्म है। अब इसका मुअन्नस बनाएंगे आमिनतु तालिबतुन, आमिनतु तालिबतुन। तो तालिबुन को हमने तालिबा बना दिया, मुअन्नस लफ्ज़ बना दिया। वो कैसे कि इसके आखिर में हमने गोलता लगा दी, इसका मतलब है आमिना तालिब इल्म है। दूसरा जुमला है हामिदुन तबीबुन, हामिद डॉक्टर है। तो यहाँ पर मुज़क्कर जुमला दे दिया गया है, आगे लिखा गया है फातिमतु, फातिमतु के आगे आप तबीबुन को मुअन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। तीसरा है हुआ मुस्लिमुन, वह मुसलमान है। आगे इसके दिया गया है हिया, तो हिया के आगे मुस्लिमुन को मुअन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। चौथा जुमला दिया गया है अलबाबु मुग़लक़ुन, दरवाज़ा बंद है। उसके आगे अन्नाफिज़ा लिख दिया गया है, आप यहाँ मुग़लक़ुन को मुअन्नस बनाकर लिखें और इसको जुमला बनाएं। पांचवा जुमला दिया गया है अलमिंदीलु वसीख़ुन, रोमाल गंदा है। आगे दिया गया है अलयदु, अलयदु चूँकि मुअन्नस अल्फाज में से है, इसलिए वसीख़ुन को मुअन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। छठा है अश्शायु हारुन, चाय गरम है। आगे दिया गया है अलक़हवतु, तो इसके आगे हारुन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। सातवां जुमला है अलमस्जिदु बईदुन, मस्जिद दूर है। आगे अलमदरसतु लिख दिया गया है, इसके आगे बईदुन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। आठवां जुमला है अत्तालिबु मरीजुन, तालिब इल्म बीमार है। आगे दिया गया है अत्तालिबतु, तो इसके आगे मरीजुन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। नवा जुमला है अलहिसानु सरीउन, घोड़ा तेज रफ्तार है। इसके आगे अस्सय्यारतु लिख दिया गया है, आप सरीउन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। 10वां जुमला है अलकमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। तो इसके आगे अशम्सु लिख दिया गया है, आप जमीलुन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। 11वां है अल अबू जालिसुन, अब्बू बैठे हुए। इसके आगे अल उम्मु लिख दिया गया है, आप जालिसुन को मुन्नस बनाकर इस्तेमाल करें। अब आगे आपको कुछ जुमले और दिए जा रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से लिखे गए हैं, आप उनको सही करें। सबसे पहला जुमला है हकीबतु मन हादा, यह किसका बैग है। अलगुरफतु मफ्तूह, कमरा खुला हुआ है। हादा सय्यारतु तबीब, यह डॉक्टर की कार है। हादी मिफ्ताह सय्यारा, यह कार की चाबी है। ऐन सय्यारतु हुआ फिश शारे, कार कहाँ है,
वो रास्ते में। तो अब आप यहाँ पर देखें हकीबा, ये चूंकि मुन्नस लफ्ज है क्योंकि इसके आखिर में गोलता आ रही है, तो इसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हादही का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हादही के बारे में हमने सबक नंबर 2 में पढ़ा है। अपने से करीब मुन्नस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हादही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हकीबतु मन हादा, हादा का इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है। इसी तरीके से बकिया जुमलों में आप गलती तलाश करें और उसको सही करें और अपनी कॉपी पर लिखें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। अब आपको कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, आप उनको पढ़ें और आखिरी हर्फ की हरकत के साथ अपनी कॉपी पर लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। सबसे पहला जुमला है हादा लि मुहम्मद व ज़ालिका लि हामिद। दूसरा है लिमन हादिही, हादिही लि यासिर। तीसरा है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा है लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। अल कलिमातुल जदीदा, अब आपको वो अल्फाज दिए जा रहे हैं जो इस सबक में नए आए हैं और उसके माने भी बताए जा रहे हैं। अल मिकवात, मिकवात कहते हैं प्रेस को। अद दर्राजा, दर्राजा कहते हैं साइकिल को। अल मिलआक़तु, अल मिलआक़ा, मिलआक़ा कहते हैं चम्मच को। अल क़िदर, क़िदर कहते हैं हांडी को या जिसमें भी खाना वगैरह बनाते हैं। अल बकरा, बकरा कहते हैं गाय को। अल फल्लाह, फल्लाह कहते हैं किसान को। अल अनफ, अनफ कहते हैं नाक को। अल फमु, फम कहते हैं मुंह को। अल उज़ुन, उज़ुन कहते हैं कान को। अल यद, यद कहते हैं हाथ को। अल रिजल, रिजल कहते हैं पैर को। अशाय, शाय कहते हैं चाय को। अल उम कहते हैं माँ को। अल सल्लाजा, सल्लाजा कहते हैं फ्रिज को। अल कहवा, कहवा कहते हैं कॉफ़ी को। सरीዕ कहते हैं तेज रफ्तार को, यानी तेज रफ्तार कोई चीज़ हो तो उसके आगे सरीዕ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अन्नाफिज़ा, अन्नाफिज़ा कहते हैं खिड़की को। जिद्दन माने बहुत। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।